A very good morning to one and all present. I, Dr. Anusar Kapoor Yadav, Assistant Professor, feel privileged to welcome you all on behalf of Amity Institute of Rehabilitation Sciences, Amity University, Uttar Pradesh, Noida, at the training workshop titled Legal Inheritance Rights of Women with Disabilities. We are extremely thankful and extend our gratitude to respected Madam Manjula Kalyan and her prestigious organization, Swayam Krushi Foundation, Telangana, for giving us the opportunity to conduct the training workshop. Disability rights cannot be guaranteed in a context that it does not affirm the equality of all women. Given that women with disabilities are some of the most marginalized sections of the society and community, a recognition of the multiple identities of women with disabilities and how that can construct their experiences of multiple forms of discrimination will help shape better development programs and rights-based laws and policies. With immense respect, we wish to offer our sincere gratitude to our respected founder president, Sir, Chairman AKC Group, Dr. Ashok K. Chauhan. Dr. Chauhan has always believed in the policy of lending one eye on vision and one eye on implementation. We also wish to put forward our sincere gratitude to our dynamic Chancellor, Amity University, Uttar Pradesh, Dr. Atul Chauhan. Armed with a charming personality and a positive attitude to help, Dr. Atul Chauhan epitomizes a true Indian with deep-rooted traditions and values. Under his dynamic and inspirational leadership and passion to excel, the Amity Group of educational institutions has seen a phenomenal growth. We also pay our sincere respect to a most versatile Honorable Vice Chancellor Madam, Professor Dr. Balvinder Shukla, who has always supported us in all our endeavors. We welcome all our esteemed attendees at the training workshop titled Legal Inheritance Rights of Differently Abled Women. May I please now invite Dr. Sampurna Guha, Assistant Professor, to kindly proceed with the program. Dr. Sampurna Guha, please. Thank you so much, Dr. Anusi. We welcome all the participants heartily to this important work on legal inheritance rights for differently abled women. As mentioned, legal inheritance rights is core idea and a core term about which awareness is lacking, especially in the Indian context. This webinar is of crucial importance for the parents, caregivers, and women with disabilities themselves to know about their legal inheritance. Before moving on with the workshop, I will now take the privilege and the honor to welcome Professor Dr. Jayanti Pujari Madam, Dean and Director, Amity Institute of Rehabilitation Sciences, Amity University, Uttar Pradesh, for her address and overview of the training workshop. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Anushya, and thank you, Dr. Sampurna, for the very well beginning of this workshop. And good morning to one and all. And namaskaram, all the parents and participants of Swayam Krushi. Andarki namaskaram. On behalf of Amity Institute of Rehabilitation Sciences and Amity Institute of Legal Services, Amity University, I welcome all of you to this training workshop. This workshop mainly aspires to raise awareness related to legal rights of intellectual and developmental disability and for the persons with women with intellectual and developmental disability. And it also highlights the key issues about guardianship, financial management, and discuss legal issues and provide guidance to all. First and foremost, I place on record my heartfelt gratitude to our Founder President Sir, our Chancellor Sir, and our Vice Chancellor Ma'am. I welcome Srimati Manjula Kalyan Ma'am, founder of Swayam Krushi,
my mentor, my teacher, and encyclopedia of special education for this, for accepting us and for agreeing and giving us the opportunity to collaborate with Swayam Krushi to conduct this workshop. We at Amity University or Amity Institute of Rehabilitation Sciences, we are committed to prepare human resource for the developmental disability, and we are also committed to prepare, create and raise awareness related to different aspects of legal inheritance rights for the women with disability. Welcome you, ma'am. Thank you. I also welcome our resource person, Sri Jitendra P.S. Solanki, Certified Financial Planner for Special Need Children. Thank you, Jitendra ji. Thank you for accepting our request in a short notice and giving us the opportunity to listen to you. Thank you, ma'am. Thank you so much. I welcome our legal trainer, Miss Nirali Jain and Miss Sana Siddiqui, who will be the key persons in orienting all the parents about the legal inheritance, details of legal inheritance right. I welcome Dr. Arun Upadhyay, Director of Amity Law School, and my colleagues and all the parents and participants of this workshop. అందరికీ నా హార్ట్ఫెల్ట్ నమస్కారం. మేము చాలా ఇష్టంగా ఇదే చేస్తున్నాము మీకోసం, సో దట్ మీరు అందరూ మంచిగా ఇది నేర్చుకొని మీ పిల్లల కోసం యూజ్ చేయండి. Thank you so much. And about this workshop, I would like to tell you that this is a workshop in collaboration with National Commission for Women. And the topic is legal inheritance rights of differently abled women. We know that this terminology is not accepted, but the National Commission of Women has given this terminology of differently abled women, DAW. That's why we need to use that. But we know it is the women with disability we must use. In our write-up, we have used this. And this workshop has been started, this project has started 1 year back and 8 months back. And we have very meticulously, we have planned the questionnaire, and our second objective is to train the student participants, women with disability, on legal inheritance rights. And for this objective, we have conducted this program. And I once again welcome you all to this training workshop. And I request the resource person to talk in Hindi because they are from Telangana. And because I don't think you know Telugu, they will be in Telugu, they will be more comfortable, but at least in Hindi and English mixed bilingual, you can speak. And even the legal trainer, I want them to speak in Hindi. And anything will be there. And the Swayam Krushi director told that they will be translating them into Telugu. Thank you so much. And I wish that this workshop will definitely create a change and raise awareness in the legal inheritance right of women with disability. Thank you. Over to you, Sampurna. Thank you so much, madam, for the blessing and the welcome. And now it's my turn to introduce respected Ms. Manjula Kalyan, madam, founder of Swayam Krushi, a non-profit organization which enables and builds persons with intellectual disability by providing them the skills needed to live life to its highest potential. Ms. Kalyan has always worked Sampurna, tirelessly. you can just video, you can switch off because your voice is breaking. Maybe after that. Yeah, yes. Ma'am, I hope it's better now, ma'am. Yeah, it is better. Now it is better. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am. So I would like to take this opportunity to introduce Ms. Manjula Kalyan, founder of Swayam Krushi, a non-profit organization which enables build persons with intellectual disability by providing them with the skills needed to live life to its highest potential. Ms. Kalyan has always worked tirelessly towards forming self-reliance among persons with intellectual disability, helping them in skills which will support independent living. Madam has worked towards creating an inclusive, empowered, and supportive society that will assist persons with needs to experience fulfillment. Madam's work and journey also been recognized by our
President Shri APJ Kalam. Now I would take this opportunity to request Anjali ma'am to bless this particular. Sampurna, your voice is not audible. Ms. Mala Kalyan ma'am, I now take this opportunity to kindly invite you to bless the meeting. Manjula ma'am, over to you for your blessings. Good morning to everybody. It's a wonderful opportunity to all of us. We, the staff of Swayam Krishi and the parents of our children, it's a wonderful opportunity. There are a lot of things that parents have queries about their children after their demise. Like we have, the National Trust has got the legal guardianship. Initially, it was wonderful, but now again, there is some lapse. People are all not getting in time the legal guardianship, and the way they are to get the property from, in what way their child who's PWD will be able to get the rights and all that. And we are very, very eagerly waiting to know more about their rights and things. And I really thank Amity University for giving this opportunity to us. And I really wish, a success for this thing. And we hope we follow more such things. Thank you so much to all the panelists there and Amity University. Thank Thank you. you. Thank you, Sampurna. Over to you. Over to you, Sampurna. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, Manjula ma'am, for blessing all of us. Now it's time for me to introduce our expert speaker, Shri JPS Solanki sir, Certified Financial Planner for Special Needs Children. Shri Jitender P.S. Solanki is a certified financial planner who works with children and adults with autism, Down syndrome, cerebral palsy, and other intellectual and developmental disabilities and their families. Sir holds an MBA in finance, and he is a certified financial planner, a chartered trust and estate planner who has acted as a resource person in several prestigious events. Sir regularly trains parents and caregivers towards financial planning and empowerment. We all are indeed blessed to have you here, sir, and we welcome you for your session on financial planning for families of differently abled women. Over to you, sir. Thank you, Sampurna. And it's a great opportunity for me. Thanks for providing this opportunity to speak on something which is very close to my heart, and I've always been working on it, on financial planning for special children families, because that's one of the areas or one of the element which I feel has been missing all along. Families are unaware how to plan, what all elements are required when we are planning for special children future. And the biggest thing is that how to plan, what are the elements to be covered. So in today's session, I'm going to cover how to do exactly financial planning. I'm not going to go deep into products and all those that are all available, but I'm going to look at why you should plan and how to go about planning for future. Sir, may I request you to be speaking little Hindi? Yes, ma'am. I'll speak Hindi or English दोनों mix में बात करूँगा. हाँ. Yeah. So Sir, special
स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज के लिए फ्यूचर ऑफ प्लानिंग इट्स नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड, बिकॉज होता क्या है कि रिसोर्सेज हमारे एक ही हैं और उसी रिसोर्सेज में से हमें प्लान करना पड़ता है पूरी फैमिली के लिए। तो आई ऑलवेज से कि किसी भी स्पेशल चाइल्ड पेरेंट के लिए ये 2 जनरेशन की प्लानिंग होती है। खुद के लिए तो प्लानिंग करना ही है, खुद का रिटायरमेंट होगा, कहाँ रहेंगे, उसके एक्सपेंसेस मीट करने होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो स्पेशल चाइल्ड है उसके भी एक्सपेंसेस को मीट करना है। तो जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो हमेशा 2 जनरेशन की प्लानिंग होती है। तो इसीलिए फाइनेंशियल लाइफ प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग 3 मेजर एलिमेंट्स पे सेट है। वन इज प्लान फॉर पेरेंट्स रिटायरमेंट, खुद की प्लानिंग करना, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना। प्लान फॉर स्पेशल नीड चाइल्ड फ्यूचर, जो स्पेशल नीड चाइल्ड है या पर्सन विद डिसेबिलिटीज उसके फ्यूचर के बारे में, और अगर कोई सिबलिंग है तो उसके फ्यूचर के बारे में भी प्लान करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग होती कैसे है, अगर सिंपल प्रोसेस में जाऊं हम लोग कैसे करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, तो पहले हम गोल सेटिंग करते हैं कि फ्यूचर गोल है क्या, आखिर आपको अचीव क्या करना है। अगर वुमेन विद डिसेबिलिटी है वन ऑफ द फैमिली मेंबर, तो उसका फ्यूचर का गोल कैसे होगा। जब आप गोल सेट कर रहे हैं तो उसके एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस कैसे होंगे, आगे आएंगे 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो वो गोल सेटिंग करनी होती है। गोल सेटिंग के और उसके अलावा और खुद के गोल्स होते हैं। आप भी रिटायरमेंट में कुछ करेंगे, कोई नया बिजनेस शुरू करना है या कुछ और करना है, हाउस मॉडिफिकेशन करना है, नया घर खरीदना है, एनी गोल्स जो आपको लाइफ में करने हैं वो गोल सेटिंग के अंदर होने चाहिए। लेकिन गोल सेटिंग आखिर करते कैसे हैं, बाद में मैं कवर करूंगा कि गोल सेटिंग जब पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है तो गोल सेटिंग करना कैसे चाहिए। फिर अपनी सिचुएशन को आप एनालाइज करते हैं कि आज की सिचुएशन क्या है, करंट स्थिति क्या है आपकी, क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या इनकम है, कितना आप सेव कर सकते हैं। जब गोल आप सेट करते हैं और गोल सेट करने के लिए आप उसको मोनेटाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट को ले लेते हैं, तो आप रिटायरमेंट का एक कॉर्पस निकालते हैं कि रिटायरमेंट में मुझे इतने पैसे की जरूरत है, और जब अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो आपको पता लगता है कि जो कितनी सेविंग करनी है आपको और आपके कैश फ्लो में से कितनी सेविंग आप कर पाएंगे। तो जब आप ये एनालिसिस करते हैं तो आपको पता लगता है कि पिटफॉल्स कहाँ है। पिटफॉल्स का मतलब है कि जो गैप है वो गैप कहाँ पर है, और आपको जब गैप पता लगेगा तब आप स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि इस गैप को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। अब उसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस आ सकता है, इन्वेस्टमेंट्स आ सकता है, अपनी सेविंग्स को आप बढ़ा सकते हैं। तो जो भी आपको स्ट्रैटेजीज आप डिजाइन करते हैं, तो कोई भी स्ट्रैटेजी आप तभी डिजाइन कर सकते हैं जब आपको गोल पता हो, और एक बार स्ट्रैटेजी आपने डिजाइन कर ली तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो एक प्रोसेस है, और कोई भी प्रोसेस हमेशा पीरियोडिक रिव्यू मांगता है क्योंकि उसमें चेंजेस होते रहते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस को अकोमोडेट करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस फाइनेंशियली इम्पैक्ट करेंगे एज अ पेरेंट। तो जब तक उसको आप अकोमोडेट नहीं करेंगे तब तक मुश्किल होगा प्लान करना। और इसीलिए कोई भी प्लान आप बनाते हैं, मान लीजिए आज इस सेशन के बाद भी अगर आपने कोई प्लान बनाया तो आपको रिव्यू करना पीरियोडिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 6 स्टेप एक प्रोसेस है जो फाइनेंशियल प्लानिंग का हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। मैं जनरली हमेशा कोई भी प्रेजेंटेशन करता हूं तो मैं ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करता हूँ। व्हाई आई एम सेइंग इज बिल्डिंग ब्लॉक, बिकॉज आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी आप गोल सेट कर रहे हैं, ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर आपका पूरा लाइफ डिपेंडेंट है। इस 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स में प्रिपरेशन ऑफ बजट आ जाता है, एस्टिमेटिंग लाइफ टाइम कॉस्ट आ जाता है, सेटिंग गोल्स आ जाता है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, और सेटिंग द सेफ्टी नेट। जैसा मैंने पहले कहा, एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट करें, क्या होना चाहिए प्लानिंग के अंदर। ये लाइफ स्टेजेस है फॉर अ स्पेशल नीड, किसी भी स्पेशल नीड पेरेंट के लिए। अगर आपकी गर्ल विद डिसेबिलिटी है एज अ चाइल्ड, तो बहुत जरूरी है ये समझना कि उसका लाइफ स्टेज क्या होगा।
वो लाइफ स्टेज आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आएंगी। और वो लाइफ स्टेज अगर आप समझ सकते हैं तो किस लाइफ स्टेज पे क्या रिक्वायरमेंट आने वाला है, अगर ये आप आइडेंटिफाई कर सकें तो प्लानिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। जनरली हमने ये 5 स्टेजेस में जो है लाइफ स्टेज को डिवाइड करा हुआ है। माइनॉरिटी, जब माइनॉरिटी होता है, माइनर होता है चाइल्ड। एडल्ट, जब एडल्ट फेज में चले जाते हैं। एडल्ट एक्सटर्नल लिविंग एनवायरनमेंट, यानी कि घर से बाहर अगर किसी रेजिडेंशियल केयर में शिफ्ट होते हैं। फर्स्ट पेरेंट की डेथ होती है, सेकंड पेरेंट की डेथ होती है, और उसके बाद जो पर्सन विद डिसेबिलिटी उसकी डेथ होती है। तो ये पूरा लाइफ स्टेज है। अब ये लाइफ स्पैन 60 साल का हो सकता है, 70 साल का हो सकता है। मेन ये है कि हर लाइफ स्टेज पे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट निकल के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल लिविंग एनवायरनमेंट, जब अगर किसी रेजिडेंशियल केयर में शिफ्ट होता है कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी, उस टाइम पे क्या अडेप्टेबिलिटी होगी, कैसी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज में करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दिया जाएगा। जनरली पेरेंट्स रिटायरमेंट के टाइम पे ऐसी प्लानिंग करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद चाइल्ड को ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पे वो खुद भी रह सकें। तो पेरेंट्स का खुद का रिटायरमेंट हो जाता है। क्या चेंज ऑफ लोकेशन होगा, आप शुरू से एक सिटी में रहे हैं, वो लोकेशन चेंज हो रहा है। तो ये सब प्लानिंग करना पड़ता है क्योंकि इन सब के पीछे जो है एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर फर्स्ट पेरेंट डेथ होता है तो विल एग्जीक्यूट होगी, वो एसेट्स ट्रांसफर होंगे, उनको कौन मैनेज करेगा, लीगल गार्डियन मैनेज करेगा, आप ट्रस्ट बनाते हैं या क्या लीगल फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो ये एक लाइफ स्टेज है जो आप जिससे आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब पहला बिल्डिंग ब्लॉक आता है प्रिपेयरिंग अ बजट। बजट एक सिंपल, हम लोग घर का बजट बनाते हैं हमेशा, फैमिली बजट बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर सब स्पेशल नीड पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है घर में, तब भी हम एक कॉमन बजट बना के चलते हैं। लेकिन एक अलग से बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे केस स्टडी में आई एक्सप्लेन कि क्यों जरूरी है। तो एक हमेशा बजट सेपरेट बना के चलें। आप फैमिली बजट बनाएं और साथ में ही एक एक्सपेंसिव बजट जो है अपने पर्सन विद डिसेबिलिटी का साथ में बना के चलें। उसका रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या कैश फ्लो की जरूरत है। आपको आज क्या जरूरत है, 10 साल के बाद क्या जरूरत होगी, 5 साल के बाद क्या जरूरत होगी, 20 साल के बाद क्या जरूरत होगी, क्योंकि उसी के ऊपर आप अपना इन्वेस्टमेंट तय करेंगे, वो कॉर्पस इकट्ठा करेंगे। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि अलग से कि उसके कैश फ्लो में कितनी जरूरत है, तब तक आप जो है एक एस्टिमेशन नहीं कर सकते, आप सेविंग नहीं कर सकते। अगर कोई भी हम सेविंग करते हैं तो आज मान लीजिए 10,000 पर मंथ आपने सेव शुरू किया, आपने सेव करना, उससे आप अचीव क्या करेंगे, क्या गोल अचीव करना चाहते हो। जब तक मुझे वो मॉनेटरी रिक्वायरमेंट नहीं पता होगा, मेरे लिए सेविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और डिसेबिलिटी के साथ, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग एक्सपेंसेस है, रिकरिंग एक्सपेंसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेपरेट बजट क्रिएट किया जाए। अब इसी के ऊपर डिपेंड आता है, अगर आपने एक सेपरेट बजट क्रिएट करा हुआ है तो आप लाइफ टाइम कॉस्ट को निकाल सकते हैं। तो लाइफ टाइम कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखिए आपने जो भी एसेट एक्यूमुलेट किए हैं वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आप कैसे एस्टिमेट करेंगे। उसके एस्टिमेशन के लिए जरूरी है कि आप जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका एक लाइफ टाइम कॉस्ट का आप एस्टिमेशन करें। इनकम सोर्सेज क्या क्या होंगे आप वो एक निकाल सकते हैं। आपकी सैलरी इनकम है, बिजनेस रेंटल इनकम है, कोई पेंशन आने वाली है फ्यूचर में, गिफ्ट मिलने वाला है, कोई इनहेरिटेंस आएगा। तो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे इनकम आएगा फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके बाद आप एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। एक्सपेंस चार्ट आप अलग से जो बनाया है आप एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितने प्रोबेबल एक्सपेंसेस हैं आप इंक्लूड कर लीजिए। माइनर है तो फ्यूचर कॉस्ट अराइज हो सकती हैं, आज की वैल्यू क्या होगी एक्सपेंसेस की। और एक्सपेंसेस अगर अनक्लियर हैं तो आप कुछ टाइम तक मॉनिटर करके ये देखिए कि क्या एक्सपेंसेस निकल के आते हैं। अब बहुत मुश्किल होता है किसी पेरेंट के लिए अलग से आइडेंटिफाई करना कि फूड के ऊपर कितना खर्चा होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अलग से हम एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई करें। मैं केस स्टडी के थ्रू एक समझा देता हूँ आसान तरीके से कि कैसे हम करते हैं। विक्की 25 साल का है, स्पेशल नीड चाइल्ड है। गौरव एज 37 ईयर्स, वांट टू एस्टिमेट कॉर्पस रिक्वायर्ड। हम अज्यूम कर लेते हैं कि विक्की की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल की होगी और एक इन्फ्लेशन 7% का अज्यूम करते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो बढ़ेंगे। अब ये एक एक्सपेंस चार्ट है जो केवल विक्की के लिए यूटिलाइज होता है।
अब इसमें देखेंगे लिविंग एक्सपेंसेस 5,000 पर मंथ है, डे टू डे केयर असिस्टेंस क्या होगा, पर्सनल नीड्स पे कितना खर्चा हो रहा है, उसके स्कूलिंग पे कितना खर्चा हो रहा है, स्पेशल इक्विपमेंट में कितना, हेल्थ केयर में कितना, सोशल तो आपने एक पूरी तरह से सेपरेट एक्सपेंस चार्ट में आइडेंटिफाई कर लिया कि आपने कितना खर्चा उस पूरा। और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कल अगर रेजिडेंशियल केयर में शिफ्ट होता है, कल अगर रेजिडेंशियल केयर में आप आइडेंटिफाई करते हैं, शिफ्ट करते हैं, वहां पे कोई मंथली एक्सपेंस जाएगा। तो जब तक आप ये प्लानिंग नहीं करेंगे अलग से, बहुत मुश्किल होगा उस एक्सपेंस को अकोमोडेट करना। फॉर एग्जाम्पल 38,500 मंथली एक्सपेंस यहाँ पे निकल के आता है, ये आज का एक्सपेंस है, 7% के साथ ये इंक्रीज होगा। आज 5 साल की एज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 साल है, लाइफ टाइम ये 70 साल का हम प्लान कर रहे हैं, इन्फ्लेशन मैंने 7% ले लिया। तो गौरव को आज की डेट में 2.38 CR के कॉर्पस का अरेंज करना है। मतलब ये कि गौरव के पास आज इतना फंड होना चाहिए जिससे कि अगर उसे कुछ हो भी जाए तो ये मनी से जो है विक्की की लाइफ टाइम एक्सपेंसेस टेक केयर कर सके। ये एस्टिमेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए वो अलग से एक्सपेंस बजट बनाने की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि ये एस्टिमेशन आपको करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जब तक आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं पता है, बहुत मुश्किल होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट करना और ये देखना कि इस इन्वेस्टमेंट से मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा। तो ये कॉस्ट जो एस्टिमेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी आप प्लानिंग करेंगे, आपके बाद कोई भी टेक केयर करेगा या रेजिडेंशियल केयर में शिफ्ट होगा या लीगल गार्डियन कोई करेगा, तो उस फंड्स आप ही अरेंज करके जाएंगे। तो फंड्स कितना अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, तो उसके लिए एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्फ्लेशन इसमें कंसीडर होता है, अजम्पशन बहुत सारे लगते हैं, इसीलिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग जो है एक प्रोसेस के जरिए आप करते हैं, तो आप पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं और चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कॉस्ट एस्टिमेशन किया जाए, इसी पर आपका इन्वेस्टमेंट बेस है, इसी के ऊपर बेस है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपके गोल को अचीव करेगा या नहीं करेगा। तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक आ जाता है सेट गोल्स। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल सेटिंग से ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। अब गोल सेटिंग, अगर एक वुमेन विद डिसेबिलिटी है आपके घर में, तो उसका गोल सेटिंग कैसे करेंगे? विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पता है कि शी वोंट बी एबल टू मैनेज एक्सपेंसेस, तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए फंड्स का कैसे अरेंज करेंगे? तो जैसे हम ट्रेडिशनल गोल्स में करते हैं, कोई 2 साल के बाद कुछ खरीदना है तो कार खरीदनी है तो शॉर्ट टर्म गोल में डाल दिया हमने, हाउस खरीदना मीडियम टर्म में डाल दिया 5 साल बाद, लॉन्ग टर्म एजुकेशन मैरिज रिटायरमेंट आता है लॉन्ग टर्म। इसी तरीके से स्पेशल नीड्स का विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम गोल सेटिंग कर सकते हैं। इमीडिएट एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म में आ गए, 5 to 7 ईयर्स मीडियम टर्म में आ गए, बियॉन्ड 7 ईयर्स लॉन्ग टर्म में आ गए, और कोई भी एडिशनल सपोर्ट करना है डिपेंडिंग ऑन होराइजन आपने गोल में ऐड कर दिया। ये गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस गोल सेटिंग के बेस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड करेंगे। अब शॉर्ट टर्म के लिए आप जो है रिस्की इन्वेस्टमेंट तो नहीं डाल सकते, आप लिक्विड रखेंगे, पैसे को बैंक डिपॉजिट में रखेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल है उसमें आप अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को चूज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये गोल सेटिंग करना, इसके बेस पर आप इन्वेस्टमेंट अपना डिसाइड करते हैं। और ये बहुत बड़ा बेसिस है कि अगर आप ये टाइमलाइन अगर बना सकते हैं, टाइमलाइन अगर आप बना सकते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए गोल सेटिंग करना, क्योंकि ये आपके पीरियड और प्लस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो भी आने वाली है फ्यूचर के अंदर, उसको आराम से एनालाइज कर देता है। तो अगर आप ये टाइमलाइन सेट कर सकें अपने बच्चे के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो ये बेस बन जाता है आपकी प्लानिंग का। इसके बाद आता है सेफ्टी नेट। क्या सेफ्टी नेट होते हैं? लाइफ, हेल्थ और डिसेबिलिटी, 3 सेफ्टी नेट होते हैं जिसको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस हैज बिकम द बिगेस्ट सेफ्टी नेट। पेरेंट्स के पास खुद होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत जरूरी है, एडिक्वेट हो, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोविजन जिसके अंदर आपकी सेविंग्स यूटिलाइज हो सकती हैं, इट्स नेसेसरी कि यू कवर इट विद एडिक्वेट प्रोडक्ट्स। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसीज को कवर करता है। तो पेरेंट्स को खुद कवर करना चाहिए। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस इनफ नहीं है, एम्प्लॉयर इंश्योरेंस पे डिपेंडेंसी ना हो तो अच्छा है, हमेशा एक स्टैंड अलोन लेके चलें। स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, चाहे वो वुमेन विद डिसेबिलिटी हो या कोई और स्पेशल नीड्स हो, अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस में इसके लिए प्रोविजन नहीं था, लेकिन थिंग्स हैव चेंज नाउ। 2000 मेंटल हेल्थ एक्ट में आया था 2017 में चेंजेस, जहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस फॉर मेंटल इलनेस हुआ। इसके साथ साथ
2020 में मैंडेट आया, IRDA ने लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को मैंडेटरीली कवर करने के लिए कहा इंश्योरेंस कंपनीज को। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज नाउ इज बीइंग कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। और अगर अभी आप देखेंगे तो धीरे धीरे इंश्योरेंस कंपनीज प्रोडक्ट्स निकाल रही है, एंड दे आर कमिंग आउट विद अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसमें कि ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी और दूसरे डिसेबिलिटीज को कवर कर रहे हैं। तो व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन मेड मैंडेटरी नाउ। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज नाउ अवेलेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब उसके अंदर हो सकता है प्रीमियम बहुत कुछ मैटर करेगा, किस कंपनी का कितना प्रीमियम होता है वो देखना होगा, बट एक ये हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा स्पेस है जिसको धीरे धीरे गैप को कवर होना शुरू हो गया है। कंपनीज आर कमिंग आउट विद हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सो नाउ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। जो गवर्नमेंट स्कीम है निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑलरेडी देयर, बट वो 1 लाख तक ही कवर करती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस हाई हो तो वो कैसे कवर होंगे, उसके लिए आपको स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो उसके अंदर ये मैंडेट ने बहुत अच्छा किया है कि अब धीरे धीरे companies are coming out with product, and there are already now existing products. I guess National Health Insurance has come out with a product. New India Assurance has come out with a product specific for person with disabilities. Second आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके उस गैप को ब्रिज करने के लिए जो आपके एक्यूमुलेशन पे डिपेंड है। अगर आपके इनफ एसेट्स नहीं है तो आपके पास क्या प्रोविजन है कि आप कवर कर सकें कि मेरे बाद जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए इनफ फंड्स अवेलेबल होंगे, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस से। यहाँ पे मैं प्योर रिस्क कवर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग ऑन टॉकिंग अबाउट जो सेविंग्स प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट मीट नहीं होता है। प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल गौरव की केस स्टडी लेते हैं, गौरव को 2.38 करोड़ की जरूरत है, अब उसके पास 1 करोड़ ही एक्यूमुलेटेड है। वो एक्यूमुलेट करेगा फ्यूचर में, लेकिन 15 साल अगर उसको लगते हैं तो 15 साल में अगर कुछ हो गया तो ये 1.38 का गैप कहाँ से कवर होगा? वो कवर होगा लाइफ इंश्योरेंस से, विच इज स्पेसिफिकली द टर्म इंश्योरेंस। तो आप जब भी लाइफ इंश्योरेंस लें, हमेशा उसको एनालाइज करके लें कि आपको क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है, उसमें सारे गोल्स कवर करें, और जो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी है आपके घर में, वुमेन विद डिसेबिलिटी, उसके एक्सपेंसेस को उसके अंदर ऐड करें एंड देन टेक अ लाइफ इंश्योरेंस कवर। बोथ पेरेंट्स के पास होना चाहिए, वो लिमिटेशंस हो सकती हैं कंपनीज के द्वारा, बट लाइफ इंश्योरेंस के लिए अवेल ओनली टर्म इंश्योरेंस। कोई भी सेविंग प्रोडक्ट अगर आप देखते हैं कि चाइल्ड के लिए बना है, इससे मीट हो जाएगा, मेरा मानना है कि प्रोडक्ट कॉस्टली होते हैं, आपकी पूरी तरह से रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करेगा। इसके लिए आपको पहले एनालाइज करना होगा कि आपको कितनी जरूरत है। इसीलिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बने आ रहे हैं, सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स एक के बाद एक कवर करना जरूरी है। आपको पहले बजटिंग करनी पड़ेगी, अलग से एक्सपेंस बनाना पड़ेगा, फिर लाइफ टाइम कॉस्ट एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा। वो आपको बताएगा कि आपको चाइल्ड के लिए या पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कितनी लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो गैप है, और वही आप लाइफ इंश्योरेंस कवर में आप ऐड करेंगे। स्पेसिफिक पॉलिसीज लाइफ इंश्योरेंस के लिए में फॉर एनीवन वुमेन विद डिसेबिलिटीज आल्सो इज नॉट अवेलेबल। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं, पहले होते थे LIC के, बट दे हैव बीन क्लोज्ड लॉन्ग बैक। एंड इम्पॉर्टेंट एस्टेट फॉर इंस्टेंट फंडिंग ऑफ द ट्रस्ट। अगर आप प्राइवेट ट्रस्ट बना रहे हैं फॉर टेकिंग फाइनेंशियल केयर, तो उसके लिए इंस्टेंट फंडिंग का एक बहुत बढ़िया टूल है लाइफ इंश्योरेंस। सो यू कैन नॉट थिंक अबाउट एनी अदर टूल जो आपके गैप को, फाइनेंशियल गैप को ब्रिज कर सके, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। अब कैसे कवरेज हम निकालते हैं, जनरली हम कैसे निकालते हैं? सारे हम अपने कैश फ्लो को देखते हैं, क्या इमरजेंसी रिजर्व होगी, लोन्स एंड लायबिलिटीज को रीपे करना है, और ये सब हम तब बात कर रहे हैं कि मेरे बाद कैसे होगा, लीगल एक्सपेंसेस को कवर करना है, लाइफ टाइम इनकम जनरेट करनी है, तो ये इमीडिएट कॉर्पस होगा। फ्यूचर रिक्वायरमेंट में आ सकती है चाइल्ड केयर फॉर ओल्डर एज ऑफ सर्वाइविंग स्पाउस, रिटायरमेंट एक्सपेंसेस फॉर सर्वाइविंग स्पाउस। तो जो भी अपने नाम पे लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है पेरेंट, उसको ये रिक्वायरमेंट्स को ऐड करना होगा, तब एक लाइफ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट निकल के आएगी। तो 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी आता है, एंड देन यू गो एंड बाय अ टर्म इंश्योरेंस, वो आपके गैप को ब्रिज करता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट हैविंग एनी लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, और वो फाइनेंशियल गैप मीट करने का कोई तरीका ही नहीं है।
they have reached a retirement age, और assets जो है वो accumulated are not enough. So parents needs to avoid this mistake and ensure that जो भी gap आ रहा है, you have an adequate life insurance for that. किसी भी कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, I'm not saying LIC, जो भी आपको एनालाइज करके आपको मिलता है कंपनी से, you should buy a life insurance. Disability insurance भी है, I'm not talking about women with disabilities, वो नहीं, but parents अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि टेम्पररी या परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं तो इनकम स्टॉप हो जाएगी. अब इनकम अगर स्टॉप हो जाए बाई चांस तो क्या ऑप्शन है? लाइफ इंश्योरेंस किक इन कर नहीं सकता और कोई प्रोविजन अवेलेबल है नहीं. देन अगर आपके पास एसेट्स नहीं है, सो हाउ डू यू कवर इट? डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के थ्रू आप कवर कर सकते हैं, which gives a monthly payout for few years. अगर ऐसी सिचुएशन आती है, इंडिया के अंदर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में डिसेबिलिटी इंश्योरेंस मिलता है. I'm again saying this is not a disability we are talking about. This is disability अगर एक्सीडेंट होता है और अगर मेरा एक्सीडेंट होता है और मैं परमानेंटली टेम्पररी डिसेबल्ड हो जाऊं. इसलिए मैंने शुरू में कहा था लाइफ, हेल्थ एंड डिसेबिलिटी 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेफ्टी नेट जो हर पेरेंट को कवर करने ही चाहिए. इसके बिना आप ये मान के चलिए कि कुछ भी होगा इनमें से, आपका जो सेविंग्स है वो वाइप आउट हो सकता है. सेविंग्स वाइप आउट हो गया तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी आपके घर में, उसके आप एक्सपेंसेस को कैसे कवर करेंगे? एक चेकलिस्ट बना के चलिए, क्या कवर होता है, क्या नहीं होता, कितने टाइम तक बेनिफिट मिलेगा, डिसेबिलिटी कहाँ कहाँ कवर होती है, टेम्पररी पार्शियल डिसेबिलिटी कवर करता है, क्या प्रीमियम है, स्पाउस सिबलिंग दोनों कवर हो सकते हैं क्या, और क्या एडिशनल फीचर है. ये इंडिया के अंदर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये मिलता है. बाकी डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप दूसरे इंश्योरेंसेस को सोच सकते हैं. कहने का मतलब ये कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जहां पे कि आपको लगता है आपकी जेब से पैसा जाएगा और वो खर्चा करेगा, वो अगर उसके लिए इंश्योरेंस अवेलेबल है तो इंश्योरेंस के थ्रू कवर होना चाहिए. दैट विल सेव अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू. इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, अब थोड़ा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करते हैं. हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं जनरली? हम एडहॉक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करें, अपना रिस्क एपेटाइट देखें, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाना, एसेट एलोकेशन चूज करना. अब एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारा का सारा एक बकेट में डालें. सारा इक्विटी में नहीं डाल सकते, सारा डेट में नहीं डाल सकते, सब फिक्स डिपॉजिट में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है. और जहां घर में अगर एक मेंबर है विद डिसेबिलिटी तो आप मान के चल सकते हैं कि इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, तो उसको कैसे बीट करेंगे? इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर वही तरीका होता है कि पहले आप गोल तो आइडेंटिफाई करें, क्या अचीव करना है आपको. 10,000 रुपये महीना अगर आपने सेव करना शुरू किया, कितना आप इकट्ठा करेंगे, उससे आपका गोल मीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है. अगर ये एनालिसिस नहीं किया है तो मान के चलिए 90% ऑफ द टाइम जो आपने सेविंग स्टार्ट किया वो शायद शॉर्ट पड़ेगा आपको. तो गोल सेट करें पहले, ट्रेडिशनल गोल्स की तरह ही अपना पर्सन विद डिसेबिलिटी के गोल सेट करें और उसका मोनेटाइज करके देन यू स्टार्ट सेविंग फॉर हर. और उस सेविंग से यू विल बी नोइंग कि क्या वो सेविंग इनफ एक्यूमुलेट कर लेगा. और अगर ये आप एनालाइज करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा एनालाइज करेंगे कि वो सही रिटर्न देगा या नहीं देगा मेरे लिए फ्यूचर में जो मुझे गोल अचीव करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गलत प्रोडक्ट ना चूज करें. गलत प्रोडक्ट हम तभी चूज करते हैं जब इन्वेस्टमेंट एडॉक होता है, यानी कि मुझे नहीं पता है उससे क्या अचीव करना है. कोई चाइल्ड के नाम पे प्लान लेके आया और मैंने इन्वेस्ट कर दिया, वो इमोशनल एस्पेक्ट आ जाता है. जितना हो सकता है इमोशनल एस्पेक्ट को आप यहाँ से दूर रखें और एक एनालाइज करें कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको कोई बता रहा है या कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करना शुरू कर रहे हैं, वो आपको आखिर अचीव क्या करेगी. बट उससे पहले अपने खुद का एनालिसिस ये कर लें कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है. विदाउट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट अचीव नहीं होता है. बकेटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है एंड मेरी राय में बहुत सही बैठती है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं. बकेटिंग स्ट्रैटेजी में होता क्या है, आप 5 बकेट बनाते हैं. एक बकेट आपने बनाया जो अगले 2 साल के एक्सपेंसेस के लिए हो गया, उसमें आपने बैंक में भी पैसा रख दिया, इट्स इनफ. एक बकेट बनाया आपने जो 3 से 5 साल के एक्सपेंसेस को मीट करेगा. एक बकेट बना दिया आपने 6 से 10 साल के एक्सपेंसेस के लिए. एक बकेट बना आपके जो 10 साल के बाद जो एक्सपेंसेस होंगे उसको मीट करेगा. और
बाकी कोई इमरजेंसीज के लिए आपने अलग बकेट बना दी। बकेटिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी आप बकेट बनाते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट आप सही चूज करते हैं। तो मैं बकेट 1 के लिए इक्विटीज को चूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरे को लिक्विड इन्वेस्टमेंट चाहिए, और बकेट 4 के लिए मैं फिक्स डिपॉजिट में नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इन्फ्लेशन बीट नहीं हो पाएगा। तो बकेटिंग स्ट्रेटेजी वर्क्स वेरी वेल व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ सॉरी for a person with disability. तो whenever you are planning, see it's simple, आपने मोनेटाइज कर लिया रिक्वायरमेंट्स, जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पे नहीं जाना चाहिए। क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है कि नहीं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो ठीक है, लेकिन वो एक लिमिट तक ही रिक्वायरमेंट को मीट करेगा। बट जब आप प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के एक्यूमुलेट करने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके खुद का एनालिसिस पूरा हो, तभी आप सही क्वेश्चन पूछ सकेंगे जो भी एडवाइजर से आप मिल रहे हैं, और क्या वो इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा है। और बकेटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करेंगे तो आई फील कि आपका इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट आप चूज करेंगे 90% ऑफ द टाइम वो सही होगा। तो रिमेंबर दिस बकेटिंग स्ट्रेटेजी एंड प्लान फॉर योर फॉर एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर फैमिली में है, प्लान फॉर हिम फॉर हर विद दिस स्ट्रेटेजी। अब ये मॉडल पोर्टफोलियो से मैं इस पे नहीं जाऊंगा, कितना होना चाहिए, कितना डेट में डालें, कितना रियल एस्टेट में डालें, कितना और दूसरे प्रोडक्ट में डालें, वो डिपेंड करता है कि आपकी खुद की एपेटाइट कितनी होती है। तो दिस इज अबाउट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। 5वां जो बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज रिटायरमेंट प्लानिंग, एंड दैट इज द लास्ट ब्लॉक। प्रॉब्ली हम लास्ट लाइफ स्टेजेस की बात कर रहे हैं जो हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, बट 90% ऑफ द टाइम पेरेंट्स आर नॉट प्लानिंग फॉर द रिटायरमेंट। एंड विद लॉन्गिविटी इंक्रीजिंग, हम लोग 80 की बजाय 90 साल तक जिएंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग हैज बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। आप और जब घर में अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में 4 एलिमेंट्स कवर होते हैं। पेरेंट्स का रिटायरमेंट, स्पेशल नीड्स का डिपेंडेंट के एक्सपेंसेस, रिटायरमेंट पे उसके भी एक्सपेंसेस होंगे, क्या रेजिडेंशियल नीड्स होगा उसका, रेजिडेंशियल नीड्स कैसे पूरा होगा, क्या सेविंग्स रिक्वायर्ड है, दिस इज रिटायरमेंट प्लानिंग। तो जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करें इन 4 एलिमेंट्स पे जरूर वर्क करें। व्हाट इट इंक्लूड, स्पेशल नीड चाइल्ड का केयर प्लान, कैश फ्लो का रिक्वायरमेंट, पेरेंट्स का ओन रिटायरमेंट कैश फ्लो, खुद का रिक्वायरमेंट होगा, स्पेशल किड्स का अलग रिक्वायरमेंट होगा, स्पेशल नीड एडल्ट है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, चाहे वो रेजिडेंशियल केयर में रहे, तो रेजिडेंशियल केयर में आप अलग से एक्सपेंसेस बियर करेंगे, अपने रिटायरमेंट के आप अलग से एक्सपेंसेस बियर करेंगे। तो आपके रिटायरमेंट में 2 तरह के एक्सपेंसेस हो जाते हैं, खुद के एक्सपेंसेस और पर्सन विद डिसेबिलिटी के एक्सपेंसेस। इसके अलावा और भी थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हो सकते हैं, गिफ्टिंग है, अगर आप अलग सिटी में रहते हैं, ट्रैवलिंग आपका होगा, तो एक्सपेंसेस अगर आप काउंट करेंगे तो ऐड होते चले जाएंगे। और अगर आपने ये प्री प्लान नहीं किया है तो सडनली इसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गिव अ वेरी गुड थॉट ऑन प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट। हेल्थ इमरजेंसी सबसे बड़ा है एक्सपेंसेस है जो हम जानते हैं कि ऐड होता है, और जितनी लॉन्गिविटी इंक्रीज होगी उतने हेल्थ एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। I'm not going to talk about challenges much, but process यही है कि खुद के एक्सपेंसेस आप प्लान करें, स्पेशल नीड चाइल्ड के एक्सपेंसेस निकालें, उसके बाद दोनों के एक्सपेंसेस को देखें, वो आपको रिटायरमेंट का कॉर्पस बताएगा, और उसके बाद सेविंग्स एक्यूमुलेशन पे आप के ऊपर वर्क करें और प्रोबेबिलिटीज निकालें कि क्या शॉर्टफॉल होगा, क्योंकि अगर शॉर्टफॉल होने वाला है तो पूरा कैसे करेंगे, पूरा नहीं होगा तो मतलब अगर शॉर्टफॉल हुआ तो आप कहाँ से आप फंड लेके आएंगे, कैसे पूरा करेंगे। अगर आप यंग एज पे हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है ये प्लान करना, बट आप रिटायरमेंट के अगर नजदीक पहुंच गए और तब आपने प्लानिंग स्टार्ट करी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई शॉर्टफॉल आपको दिख रहा है तो वो शॉर्टफॉल कैसे होगा, क्या आपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेंगे, क्या आप लॉन्ग टाइम तक वर्क करेंगे, तो वो स्ट्रैटेजीज फिर उसी हिसाब से डिसाइड होगा जितने जिस हिसाब से आपके शॉर्टफॉल मीट करने हैं। बट यू हैव टू गिव अ थॉट ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग, इसके बिना रिटायरमेंट के बाद एक्सपेंसेस मीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। केस स्टडी, आई वोंट गो इनटू दिस केस स्टडी, ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे हमने एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई किए थे। अब ये फैमिली एक्सपेंसेस का अलग चार्ट है और विक्की के एक्सपेंसेस का अलग चार्ट है, यानी कि आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को अलग निकाल रहे हैं
फैमिली एक्सपेंसेस में आपने जो आपके खुद के एक्सपेंसेस है वो निकाल लिए, विक्की के एक्सपेंसेस जो हैं वो अलग से विक्की के एक्सपेंसेस को बताएगा जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और दोनों के कॉर्पस को आप आइडेंटिफाई करोगे अलग अलग, तब आप सेविंग शुरू करोगे कि दोनों में कितना सेविंग की आपको जरूरत है। प्लानिंग योर रिटायरमेंट, कॉर्पस को आप आइडेंटिफाई करें, पहले आइडेंटिफाई कर लें कॉर्पस में स्पेशल नीड कभी एक्सपेंसेस इंक्लूड होने चाहिए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एनी शॉर्टफॉल उसको आइडेंटिफाई करें, एडजस्ट टुडेज कैश फ्लो, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा सेविंग करने की जरूरत पड़ेगी, आज कैश फ्लो एडजस्ट करना पड़ेगा, यू माइट हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर मोर वर्किंग ईयर्स, मैक्सिमाइज एम्प्लॉयर रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर आप जॉब में हैं तो और एम्प्लॉयर बेनिफिट है तो आप जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसको कीजिए, क्योंकि दे आर ईपीएफ है या और रिटायरमेंट बेनिफिट है, दे आर अ वेरी गुड टूल टू ऐड टू योर रिटायरमेंट कॉर्पस। इवैल्यूएट द सपोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट, क्या सपोर्ट मिलने वाला है आपको, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, इसको इवैल्यूएट करें, और इवैल्यूएट रेजिडेंशियल नीड्स, कहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटी रहेगा, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो वेयर शी इज गोइंग टू स्टे, और उसके लिए अगर आपको रेजिडेंशियल केयर आइडेंटिफाई करना है तो बहुत स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, क्या स्टाफ रेशो है, कैसे मीट हो रहे चीजें, तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई अ गुड रेजिडेंशियल केयर, to evaluate the residential need of the child ki is she going to stay in the same house, can it work out, or you'll have to find a residential care, आपके expenses उसी हिसाब से होंगे, घर में रहेगी तो शायद ज्यादा expenses हो सकते हैं, अगर if you are going to shift to a residential care तो लो थोड़े lower हो सकते हैं, तो you will have to look at, you will have to identify this because इसी के ऊपर आपके expenses आपके financial based होंगे। इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटीज ऑफ रीलोकेशन, हो सकता है आपको रीलोकेट करना पड़े, आप मेट्रो सिटी में हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, छोटी सिटी में आप जाते हैं एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, तो हो सकता है आपको रीलोकेट करना पड़े, रीलोकेशन में फिर कैसे वर्कआउट होगा, अडेप्टेबिलिटी, अदर थिंग्स, ये सब आपको देखना होगा। रिटायरमेंट मिस्टेक्स टू अवॉइड, नॉट रिलाइंग ऑन एम्प्लॉयर बेनिफिट्स, मैक्सिमाइजिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, ओवर इन्वेस्टिंग इन वन एसेट क्लास, सब कुछ रियल एस्टेट से मत करें, सब कुछ लाइफ इंश्योरेंस से मत प्लान करें, enough assets invested in growth asset, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को जरूर रखें क्योंकि दैट इज द ओनली एसेट क्लास जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। कांस्टेंट चेंजेस विद इन द प्लान, रिव्यू हमेशा करें अपने प्लान को, हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद एक रिव्यू करें। हैवी बोरोइंग, ज्यादा बोरोइंग पे भी मत जाइए क्योंकि वो आपके कैश फ्लो को रिड्यूस कर देगा। कैशिंग रिटायरमेंट कॉर्पस अर्ली इन लाइफ, अब जब आप ईपीएफ होता है या और दूसरी चीजें उसका आप अर्ली निकाल सकते हैं, तो उसको आप ना निकालें तो अच्छा है बिकॉज दैट इज गोइंग टू ऐड टू योर रिटायरमेंट कॉर्पस। सो जितना कोशिश करें अपने इस रिटायरमेंट मिस्टेक्स को अवॉइड करें। अब लास्ट बट एक विजन हमेशा प्रिपेयर करके रखें कि आप एज अ पेरेंट यू नो अबाउट योर चाइल्ड वेरी मच, गर्ल विद डिसेबिलिटी है, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, क्या वर्क होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बट कोई भी फ्यूचर पर्सन जो उसको टेक केयर करेगा उसको कैसे पता लगेगा कि क्या है, क्या वर्कआउट हुआ है, क्या नहीं है, आपकी क्या विश थी, आप कैसे चाहते हैं। उसके लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट लिखा जाता है जिसमें आप अपने जो भी चाइल्ड है विद डिसेबिलिटी उसके बारे में सब कुछ लिखते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, उसका लिविंग डेली रूटीन क्या है, उसका रेजिडेंशियल नीड्स क्या है, करंट कहाँ पे रेजिडेंस होगा, फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं, हेल्थ केयर क्या वर्कआउट हुआ है, हेल्थ केयर में क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए नेक्स्ट गार्डियन को, सोशल एक्टिविटीज क्या है, एजुकेशन उसका कैसा है, रिलीजियस में व्हाट शी लाइक्स व्हाट शी डजंट लाइक्स, और फाइनल अरेंजमेंट। तो लेटर ऑफ इंटेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाता है अबाउट योर चाइल्ड लाइफ कि अगर कोई आपके चाइल्ड के बारे में अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए so he can read the letter of intent and identify. Or this is the first document any parent after this session, if they want to start planning, write a letter of intent. And I'm 100% sure कि spouses भी, एक स्पाउस को अपने बच्चे के बारे में ज्यादा पता होगा who is taking 24/7 केयर, और जो वर्किंग में है स्पाउस उसको शायद उतना नहीं पता होगा। ये गैप तो पेरेंट्स के अंदर भी मिलता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड आफ्टर योर लाइफ टाइम। So this letter become very important, letter of intent, and globally families do write this document, and India में also
parents have started writing letter of intent, and it's a very, very good resource. Future guardian, future trustees, future organizations, जहाँ residential care में रहेगा उनके लिए, सबके लिए letter of intent becomes a very good document. I won't go on much on this. Special need planning approach. Address issues, identify resources. आपके resources क्या हैं? Estimate cost, बहुत important है. Choose professionals, choose the right professionals. Then only things will work out. But create a plan today. Without plan creation, things won't work out. Execute the legal plan today. Prepare a letter of intent. कुछ नहीं समझ में आ रहा है, just start writing letter of intent. Okay, we will give you a template, but it will help you immensely. And monitor and update plan. Common mistakes. This is my experience with families. Not declaring child disability in insurance scheme, बहुत important है, always display. Not planning for contingencies, not planning for own incapacity to work. Parents ने सब कुछ plan कर लिया, but खुद ही incapacitated हो गए, तो फिर how will things will work out? You have to plan for that also. Long term care expenses child के लिए plan करने बहुत जरूरी है, because अगर वहाँ shortfall हो गया, तो be it in the private trust or be it the residential care, how will they take care अगर उनके पास funds ही नहीं आएंगे तो? I'm planning everything to will में एक certain element cover होता है, but not beyond that. Failure to create a trust. I'm not saying only trust, but जो भी provision आप करना चाहते हैं, you should create that provision today. Don't delay it के retirement पे करेंगे या बाद में करेंगे, या child जो है जब 22 साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, then we will start planning. No. Estate documents, create and review it periodically. जो भी पर्सन आप चूज कर रहे हैं, आप फ्यूचर केयर के लिए चूज अप्रोप्रिएटली. एंड कम्युनिकेट चाइल्ड नीड्स विद की पीपल. हु ऑल आर द की पीपल? यू शुड कम्युनिकेट योर चाइल्ड रिक्वायरमेंट and write a letter of intent and give them the letter of intent. This is about my child. This is everything I have planned. I have planned for her financially, and I want this. My child should be taken care in this manner. So start with letter of intent and educate funding. सब कुछ कर दिया, ट्रस्ट आपने बनाना था, ट्रस्ट बना दिया, लेकिन अगर फंडिंग ही उसको अवेलेबल नहीं होगी, तो व्हाट विल ट्रस्ट, हाउ विल दे लुक आफ्टर फाइनेंशियली? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दिस थिंग हैपन. Okay, I think that's all from my side, all about financial planning, and happy to answer any questions which come up. Thank you, Jitendra sir. आपने बहुत ही इजी वे में एंड बहुत ही एक्सप्लेनेटरी एंड इलैबोरेट वे में हमारे पार्टिसिपेंट्स को आज के फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वुमेन विद डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में आपने बताया. एंड यू हैव मेंशन्ड अबाउट द बकेटिंग स्ट्रैटेजी, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग द करंट गोल्स, एंड जो फ्यूचर में हमारे पास जो एक्सपेंसेस आ सकते हैं उसके बारे में भी आपने बताया. एंड लेटर ऑफ इंटेंट जिस पे आपने एम्फसाइज किया, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ने आपकी जो सेशन है बहुत ध्यान से उन्होंने सुना है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चंस. So with the permission of all the dignitaries and the experts present in the session, क्या हम at least 3 to 4 questions अभी हम ले सकते हैं? So participants, please feel free. आप अपने questions को पूछिए. If any translation is required, we have the support for that also. So please go ahead with your doubts and questions. Thank you, Jitendra ji. बहुत अच्छे से बताया Thank you, आप. ma'am. It will really helpful for the parents because they are looking forward for this only. Yes, ma'am. Manjula ma'am, over to your parent, ma'am. Durga, is there any questions? Can you please ask the questions? If anybody has any queries, please, Durga, Kanaka Durga. पुनीत जी, वो लोग अनम्यूट कर पाएंगे ना? Yes. Yes, Miss Lakshmi. Miss Lakshmi Narayana. Yes, Hello? please. Yes, please.
అది ఆఫ్ చేసేమా గైస్ ప్రియాంక అది సౌండ్ తగ్గించు హలో Yes, please go ahead. హలో దిస్ ఇస్ దుర్గా You are audible, madam. You can ask the question. సంపూర్ణ Yes, ma'am. okay just give me like 5 minutes of time no just Sure, I ma'am. want to explain them in Telugu Yes, ma'am. then I can ask the parents to give, like come out with the questions Sure, ma'am. then we Sure, can ma'am. have a discussion Definitely, ma'am. Please, ma'am. okay okay మీరు ఇంతవరకు ఏంటి అంటే మీకు ఎంతమందికి ఆడిబుల్ అయ్యిందో తెలియదు కానీ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ కొంచెం తెలుగులో చెప్తాను ఇది వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ హౌ ఇంటెలిజెంట్ గా మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనం చిన్నప్పుడే మనం చేసినప్పుడు ఒక గోల్ సెట్టింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు గోల్ చేసుకున్నా కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి గోల్ ప్లానింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది గోల్ ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత మన దగ్గర ఏవేవి రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అంటే ఒక గోల్ అన్నప్పుడు దానికి ఏమేమి మన దగ్గర దొరుకుతున్నాయి మేబీ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఆర్ నాన్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ దానికి కావాల్సిన సపోజ్ ఒక గోల్ ఉంటుంది మనం ఒక కాలేజ్ కి రావాలని గోలే అనుకుంటే ఆ గోల్ కావాల్సిన రిసోర్సెస్ నాన్ రిసోర్సెస్ చూసుకోవాలి ఏం కావాలి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఉండాలి మనకు ఉండాలి మనకి చేయాలి అని నాన్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ బస్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి మన దగ్గర మనీ ఉండాలి మన దగ్గర టైం ఉండాలి సో అలాంటి రిసోర్సెస్ అన్ని గోల్ కోసం మనం సెట్ చేసుకుంటాము తర్వాత వాటిని మనం ఎంత ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము తర్వాత ఈ గోల్ తీసుకున్న గోల్ కరెక్టా కాదా అనేది కూడా మనము ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి అని ఆయన చెప్పారు తర్వాత ఇంకొకటి ఏమంటున్నారంటే లైఫ్ లో మనకి ఎన్నో స్టేజెస్ ఉంటాయి మన స్టేజెస్ చిన్నప్పుడు మిడిల్ చైల్డ్హుడ్ కానీ అన్ని ఎవ్రీ స్టేజ్ లో మనకి ఏదో ఒక నెసెసిటీ తప్పకుండా వస్తుంది మనకి ఒక స్టేజ్ లో ఏమవుతుందంటే పిల్లల చదువుకుంటుంది వస్తాయి ఇంకొక స్టేజ్ లో ఏమవుతుంది సపోజ్ మన దగ్గర మన డిజబిలిటీ మన చిల్డ్రన్ ఒకవేళ ఉంటే వాళ్ళకి మనము ఎలాంటి రెసిడెన్షియల్ లో పెట్టాలా స్కూల్ లో పెట్టాలి ఫీజ్ ఏంటి రెసిడెన్షియల్ లో పెడితే దానికి కావాల్సినవన్నీ They are translating right now. Lakshmi Narayana has raised her hand. Please speak. Lakshmi Narayana, please speak. Yeah, I'll speak after Swayam Krishna madam. Sir, you can ask sir because Jitendra sir को also भी time नहीं है ना ज़्यादा फिर हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते है ना. Okay, I am well connected with disability. I know you are working for the National Trust. Manjula ma'am was telling. Yes. So you can general question by the time Durga comes out. You can just ask a general question because you will be facing with the parent and all. You can have a question and we can have a discussion because we have requested sir for 1 hour only. See, sir, I am connected with the parents and the NGOs who are working for disability on life cycle basis for the last 20 years. So well connected with the National Trust and everything, also providing for the legal guardianship and the financial security, including social security, that answering ये बोलते हैं ना पेरेंट्स का हमारा बाद क्या होता है बच्चे का, what will happen child after us. Now broadly if you think about the situation जो urban area में है, rural area में जो plan करता है, कुछ parents है they can afford, कुछ parents somehow they can manage it, some parents cannot afford. See, now we are more worried about the who cannot afford. Yes. ये होता है urban area में more or less about 70% cannot afford. If you come to the rural, more or less 95, even you can say that 100% they can't afford for that. Now the real problem is, though you see your financial management is really very good. See, we are also trying it actually to answer, take out the child, legal guardianship to the NGO, through whether parents are there or not there, with some financial support given by the parents. NGO will take the responsibility to work on life cycle basis so that parents का जो tension रहता है, that we can relieve it. Yeah. But the problem comes
if a government support or support for the corporate is not much, see, trust who can create it, but who can't afford ये लोगों के बारे में, we have got a lot of issues we are facing actually. Now the Jayanti, Jayanti, they all hello, Yes, Jayanti. ma'am. Yes, ma'am. You know, she is explaining everything in Telugu. So Ah. we need to, and once they understand, they will question. In between, I think somebody is asking questions and you are talking. Ah. So ask the person who has asked, because the parents are, some of them did not understand. So she's translating everything in Telugu. Okay. So we need 5 minutes time, I know. So in between somebody is talking, we are mixing all that. Oh. Yeah, Lakshmi Narayana just tell- Garu is talking, That madam. now, and I know that gentleman is asking, but please give us time. Ma'am, can we, మీకు ఒకవేళ మీ పేరెంట్స్ లో మీరు ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ వస్తే మాట్లాడుతున్నారు Now, so క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసి సంబుదాన్ని ఫోన్ చేసి చెప్తాను. No issues, no issues, Manjula ma'am. What we can do is we can continue with the sessions, and once Durga ma'am has explained all the translated and explained all the key points in Telugu, we can take up the questions at the end also. And as Madam Jayanti ma'am mentioned, Jitendra Solanki sir is already is having other commitments also. So if certain questions remain unanswered, we will surely take it up and pass it on to him through email also and through call, and then he can further provide the answers, and then we can definitely support your parents. Will that be okay, Manjula ma'am? I think Sampurna, that will be okay. We will at that time, we will are once ready again to ask some connect to questions. Jitendra. Sampurna? Yes, ma'am. Hello, Sampurna, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are audible to us. Please go ahead, ma'am. Yeah. Can you hear me now? Yes, yes, ma'am, we can Yeah. hear you. See, you, some very important questions, some of them want to ask 1 or 2 questions. Meanwhile, we will collect their questions, and as you said, we will send it, and you can send us by mail. So because of the time. However, Okay. some questions you can answer right now. Ma'am, can we do one thing? We can have that other the legal trainer जो बताते हैं एक घंटे के लिए, वो हम सेशन स्टार्ट कर देते हैं. We will start that session, and then जितेंद्र जी का questions हम लिख के रखते हैं. And Okay. if you Durga can send it to me, I will send it to him, and he will at the end of the session he will reply for that. Okay, okay, thank you. Yeah. Thank you. Ask Durga to WhatsApp to me or Sampurna. We can WhatsApp to We will do, Jitendra ji. we'll do that. We will do Okay. that. And now Okay. we are starting the second session, ma'am. Okay, okay. Okay. Let's start it. 1 minute. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Jitendra sir. To all our participants, and आपने बहुत डिटेल में सबको elaborate करके points बताए. And dear participants, it's now time to move on to the other sessions of today's program. The session, which is an important session, orientation on legal inheritance right. Session will be taken up by Ms. Nirali Jain and Ms. Sana Siddiqui, who are experts in legal law, especially in the family law area, from Amity Institute of Advanced Legal Studies. So now I invite Ms. Sana and Ms. Nirali for their session, and they will be in detail explaining about the legal inheritance components. Over to you, Ms. Sana and Nirali. थैंक यू सो मच मैम. आप सभी को नमस्कार. मैं एमिटी यूनिवर्सिटी से हूँ और मुझे आज आपको बताना है कि आपके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनमें आपको कितने राइट्स मिले हुए हैं और जो आपको पहले मिले हुए थे उसमें से क्या क्या चेंजेस हुए हैं. तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट. प्रॉपर्टी राइट का मतलब ये है कि आपको जो आपकी पुरानी जो भी संपत्ति या जो पुरानी प्रॉपर्टीज है उसमें जो राइट्स आपको पहले नहीं थे वो प्रोवाइड किए गए हैं 2005 के बाद, जिसमें कि जितनी भी हिंदू महिलाएं हैं उनको प्रॉपर्टीज में एक राइट मिला है, जिसमें कि आपको
जो भी आपकी पूर्वजों की प्रॉपर्टीज हैं, आप उसमें अपने लिए अपना राइट क्लेम कर सकते हो, जिसमें कि आपको जो भी हक दिया है गवर्नमेंट ने, वहां से आप अपने दादा परदादा की कोई भी प्रॉपर्टी या आपकी फैमिलीज में जो कि सिर्फ आपके भाइयों को मिलती थी या आपके मतलब लड़कों को जो प्रॉपर्टीज मिलती थी, अब उस प्रॉपर्टीज पे लड़कियों का भी सेम अधिकार है। तो अगर आपको इस बात से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है या इस सोचने की जरूरत नहीं है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज थी उसमें पहले जो भी चीजें लड़कों को मिलती थी उस प्रॉपर्टीज में अब आपको भी सेम चीजें मिल सकती हैं, अगर आप इस चीज के लिए लड़ाई करें या इस चीज के लिए आप अपने राइट्स को समझने लगे, तो आप जाके इसको क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में कि आपकी जो भी पुरानी प्रॉपर्टीज रही हैं या 2005 से पहले की भी जो आपकी प्रॉपर्टीज थी, अगर आप चाहते हैं कि उन प्रॉपर्टीज में आपको आपका हक मिले, तो आप इस चीज के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि हमें हमारी वो जो जमीन नहीं मिली थी आप हमें वो दिलवाएं। आप ये मत सोचिए कि आपको दहेज मिल चुका है तो इसमें आपकी जो फैमिली थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ पूरी हो गई। ऐसा नहीं है, दहेज देने के बाद भी जो प्रॉपर्टी आपके हक में आती है या जो प्रॉपर्टी आपके भाई को मिलती है उतनी ही प्रॉपर्टी आपको आपकी फैमिली देगी। शादी और दहेज देने के बाद भी उस प्रॉपर्टी पे आपका पूरा हक है और हर एक लड़की का हक है जो भी जन्म लेती है। आपका ये जन्म अधिकार है कि अगर आप किसी भी फैमिली में पैदा हुए हैं, अगर आप एक लड़की हैं तो आपकी फैमिलीज में आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे, आपको इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के बाद। ये एक एक्ट है जिसको कि गवर्नमेंट ने अप्रोच किया इस वजह से क्योंकि जो पहले की हिंदू महिलाएं थी उनको किसी भी प्रॉपर्टीज में या कहीं पे भी कोई भी राइट टू इक्वलिटी नहीं मिली हुई थी। सबको ये लगता था कि सिर्फ लड़कों का बर्थ हुआ है तो लड़कों को ही डिवाइडेशन दिया जाएगा प्रॉपर्टी में, लड़कियों की शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। तो लॉज ने ये चीज कनेक्ट करी कि लड़कियों को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि लड़कों को मिलता है। ये अमेंडमेंट काफी टाइम से इसको लेके बात चल रही थी, बट 2005 में इन्होंने इसको इनेक्ट कर दिया, इन्होंने अमेंड कर दिया और इन्होंने ये बोला कि अब से जो भी राइट्स है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि आपकी फैमिलीज में लाइक मूवेबल प्रॉपर्टीज बोलते हैं हम जिसको, जो कि वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आप उसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे आपकी फैमिलीज में आपकी ज्वेलरी है या कोई भी चीज ऐसी है जो आपके पेरेंट्स आपको मतलब देना चाहते हैं और नहीं देते हैं या फिर उनका मन ये है किसी भी रीजन से, तो आप उनके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। चौथी चीज इसमें आपकी ये आती है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टीज है जिसमें कि आपको लगता है कि हाँ जो सक्सेशन में दी गई प्रॉपर्टीज आपको उसका क्या फायदा या हम क्यों मांगे या कुछ भी करें, तो सबसे बेस्ट चीज ये, अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टीज है और आपको लगता है कि आपकी फैमिलीज में वो प्रॉपर्टीज आपको नहीं दी है और अगर आप वो ले लेते हो तो आपको वो एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का काम करती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जिनके पास आज को कोई भी काम नहीं है, वो बेरोजगार है, या बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो कि अपनी एजुकेशन के लिए उनके पास अब पैसे नहीं है और वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। तो अगर आपके पास आपकी प्रॉपर्टीज होंगी तो मेरा मानना ऐसा है कि आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एजुकेशन के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए। और कल को अगर आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया, आपका डाइवोर्स हो जाता है, तो उस टाइम पे आपके पास एक ऐसी इनकम सोर्सेज होनी चाहिए जिससे कि आप किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। आप एक सेल्फ डिपेंडेंट काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सेविंग्स है, सेविंग्स में अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज है तो उसका यूटिलाइज आप अपने फ्यूचर में कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हर किसी को ये प्रॉपर्टीज डिमांड करनी चाहिए। अगर आप एक वुमेन है तो ये आपका राइट भी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टीज आप उनको क्लेम करें और उनको फ्यूचर में यूज करें, उनका यूटिलाइज करें और एक डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का काम देखिए। आप मेरा और आपका दोनों जब मिलके डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे ये तभी होगा। मेरे कुछ भी कहने से या आपके कुछ भी समझने से ये जब तक नहीं कंप्लीट होगा, जब तक आप इस चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इस चीज पे काम नहीं करेंगे, तब तक हमारे बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगा। तो ये एक कदम आपका और एक कदम हमारा मिलके ही हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज क्लेम करना स्टार्ट करेंगे तो लड़कों को भी ये चीज लगेगी कि हाँ वुमेन्स अपने हक के लिए लड़ रही हैं, ठीक है। जिसमें कि क्या होगा कि आपको जो अभी हम उनसे एक बोलने से पहले सोचते थे या डरते थे, तो उस चीज में क्या हो जाएगा कि उनको भी सेम चीज हमसे होगी।
उनको भी एक डर रहेगा कि हाँ ये भी क्लेम कर सकती है। अब क्या होता है कि कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि अगर लड़के होते हैं तो लड़के ये बोलते हैं या माँ बाप बोलते हैं कि हाँ लड़की की शादी हो गई, दहेज दे दिया, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। अगर आपको दहेज दे भी दिया जाता है, कुछ भी दे दिया जाता है, तो आपको अगर ये चीज पता है कि आपके राइट्स क्या हैं तो आप उन पे पूरी फाइट कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको किस चीज के लिए लड़ना है तो एक अलग चीज है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं आप उनके लिए लड़ सकते हो और आपको वो मिल सकती हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप उस चीज के लिए लड़िए और उनको अपने हक में लीजिए, जिससे कि आपको आपके फ्यूचर में काफी सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। और इसीलिए हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पे ही वर्क कर रही हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको एक ये प्रोटेक्शन राइट मिले और एक सिक्योरिटी मिले, जिससे कि वो अपने फ्यूचर्स में आराम से अपनी चीजों को इन्वेस्ट करके रखें और वो आगे उनके फ्यूचर में काम आएगी। और इसमें एक चीज और भी आती है कि जो भी हिंदू महिलाएं हैं, अगर उनको ये लगता है कि मतलब वो उनके जो हस्बैंड है उनकी जो प्रॉपर्टीज है या शादी के बाद क्या होता है ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं, कुछ चीजों का आपको भी पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें कि महिलाओं को हर जगह पे इक्वल नहीं रखा जाता। तो अगर आपको कल को आपके ससुराल वाले या फिर कोई भी मायके वाले अगर जब ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं, डाइवोर्स हो जाता है, उस कंडीशन में आपको आपके मायके वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि आप उस टाइम पे ऐसी जगह पे होते हैं कि आप ना इस साइड में जा सकते हैं ना उस साइड में जा सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो बहुत हेल्पफुल होती है, आपकी ग्रोइंग में बहुत काम आती है। अगर आप उस छोटी सी प्रॉपर्टी को कहीं रेंट पे भी दे देते हैं तो उससे भी आपका किराया आता है, जिससे कि आपका मंथली खर्चा इजीली चल सकता है। तो आप लोग अगर ये एक एक स्टेप लेंगे तो जितनी भी मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट चीजें हैं कुछ भी है, सबके पास एक प्रॉपर्टीज होती हैं। पापा दादा नाना सभी के पास प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले ये होता था कि हाँ ठीक है हमने लड़कों को दे दी और लड़के उससे अपना कारोबार स्टार्ट कर लेते थे, तो वो चीज लड़कियों के साथ क्यों नहीं और उनको भी वो चीज क्यों नहीं मिलेगी, ये प्रॉब्लम है। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इस चीज पे फोकस करेंगे और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपनी साइड से और हमारी साइड से पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, जिससे कि आपको ये लगेगा कि हाँ इन फ्यूचर अगर वो चीज आपको प्रोटेक्ट करेगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टी राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है और वो आपकी लाइफ में कहाँ पे मैटर करते हैं और वो आपकी लाइफ में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये आपको समझ आ जाएगा। अब मुझे आप लोगों से क्वेश्चन एक पूछना था। इफ इन केस आप में से किसी ने भी माइक ऑन करा हुआ है, सिंपली मुझे ये बता दें कि आप में से कितनों को ये बात समझ आई है। प्लीज स्विच ऑन योर माइक। And I think mic and camera option may not be available. No issues. आप जैसे proceed कर रहे हो वैसे proceed करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज निराली। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये तो अभी हमने बेसिक लीगल अवेयरनेस और लीगल इनहेरिटेंस के बारे में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में सुन लिया। अब बीइंग इन अ वेरी कैजुअल मैनर, अगर मैं एक आपको इमेजिनरी सिचुएशन या इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जाऊं, हम एक इमेजिन करते ये सिचुएशन जहाँ पे इन अ फैमिली दो भाई बहनें हैं, पेरेंट्स आए, उन्होंने दोनों को इक्विवेलेंट एक गिफ्ट ला के दिया, रैप्ड गिफ्ट दिए, वी विल बी डेफिनेटली वेरी हैप्पी। वो गिफ्ट देख के हमें बहुत खुशी होगी कि मुझे भी गिफ्ट्स मिले हैं, सामने वाले को भी गिफ्ट मिला है। अगर अब हम इसी को ऑपोजिट एक और इमेजिनरी सिचुएशन में जाए, जहाँ पे अगर हम देखें कि भाई को लाके गिफ्ट दी गई है और बीइंग अ गर्ल मुझे वो गिफ्ट नहीं दिया गया है, तो ऑब्वियसली वो चीज हमें हैम्पर करेगी एंड वो हमें मेंटली डिस्टर्ब भी करेगी कि व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन, ये हमारे साथ डिफरेंस क्यों हो रहा है। सिमिलरली वे में अगर हम यहाँ देखें इन टर्म्स ऑफ, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, तो पहले भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी में ये था कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी हमारी, तो मेल को इक्वल राइट्स दिए जाते थे, सब चीज दी जाती थी, एंड फीमेल वर ट्रीटेड कि आपको कोई भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आपके नहीं है। लेकिन आफ्टर 2005 क्या हुआ है, जैसे कि हमें गिफ्ट्स देख के खुशी मिलती है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इक्वल राइट्स वुमेन के लिए भी बना दिए है कि जो पेडेस्ट्रियल पे या जहाँ पे आदमी खड़ा है वहीं पे उसी लेवल पे आज की डेट में विमेन खड़ी रहेगी। तो ये तो हो गई कि हमें कैसे चीजों को समझना है। सेकेंडली अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो वो आपकी मूवेबल भी हो सकती है और आपकी इमूवेबल भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम देखें लैंड होता है, जमीन होती है लोगों के पास,
है ना, जमीन हो गया, ज्वेलरी हो गई, हम जनरली इन्वेस्ट कर देते हैं कि अगर हमारे पास पैसे रखे तो चलो हम इसकी सोने खरीद के रख लेते हैं, वो बाद में फ्यूचर यूज के लिए काम आएगा। ये जनरली इंडिया में कॉन्सेप्ट चलता है। तो अगर हम ये सब चीजें देखें और अगर हमें अपने लाइफ को सिक्योर करना है तो हम इन सारी चीजों के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स के पास है या चाहे हमारे वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास है। ये सारे के ऊपर हमारी इक्वल राइट बनती से हमारे अदर सिबलिंग्स की बनती है। ठीक है, अब इसको हम कैसे रख सकते हैं? अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, देयर आर पेरेंट्स जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, तो पेरेंट्स ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे अपने बच्चों के लिए। जैसे अभी हमने आगे वाले सेशन में भी जो हुआ था उसमें भी हमने सुना कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और कैसे आगे अप्रोच करना है। तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपने बच्चों के फ्यूचर को माइंड में रखते हुए करोगे, एंड दैट वुड बी कि आप अगर उनके नाम पे बैंक अगर आप बनवा दे, मतलब बैंक अकाउंट खुलवा देते हो उनके नाम पे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके उनके नाम की जब सेविंग्स होगी तो दे वुड बी सेल्फ सफिशिएंटली, वो अपने आप को भी आगे कभी उनको मॉनेटरी टर्म्स में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। फर्दर द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो आज की डेट में हमें देखना होगा वो ये है कि वी शुड बी इंडिपेंडेंट, हमें डिपेंड नहीं होना है। अब अगर बहुत सारे पेरेंट्स का ये अप्रोच होता है कि बेटा तभी या बच्चा तभी एक्सेल करेगा जब वो पढ़ाई में एक्सेल कर रहे हैं, मतलब स्टडी को हम इतना ऊपर रख लेते हैं कि स्टडी के अलावा अगर वो कुछ कर रहे होते तो हमें लगता है कि दे आर नॉट वेल वर्स विद, उनकी वो आगे कुछ अपने लाइफ में नहीं कर सकते, करियर नहीं बना सकते। बट अगर किसी को, अगर हम यहाँ हम देखें कि अगर पढ़ाई में या फिर कोई पर्टिकुलर फील्ड में वो उतने वेल ट्रेन या वेल स्टैब्लिश नहीं हो पा रहे, तो रादर देन हम उनको डीमोटिवेट करें, उल्टा हमें उनको जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, कुकिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, इनफैक्ट आपका सिंगिंग हो सकता है, तो जिधर भी उनका इंटरेस्ट है अगर हम उधर उनको मोटिवेट करें, उधर उनको पुश करें, तो वो अपने फील्ड में एक्सेल करके अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। क्योंकि हमेशा डिपेंडेंट आप किसी पे भी रहो तो वो आपके लाइफ के लिए ऑब्वियसली देयर इज नो वन हमेशा के लिए, है ना। तो इनफैक्ट अगर हम इनहेरिटेंस मनी का भी अगर हम कर ले रहे हैं, अगर हमने लीगल इनहेरिटेंस हमने कर भी लिया अपने पूर्वजों से, वो भी एक टाइम पे दैट हैज टू बी फिनिश। तो एक ये अप्रोच तो है कि हमें क्या मिल सकता है, कितनी प्रॉपर्टीज मिल सकती है, रादर देन दैट हमें एक इंडिपेंडेंट अपने आप को बनाना बहुत जरूरी हो गया है। फर्दर प्रॉपर्टीज को लेके फाइनेंस ऑब्वियसली पेरेंट्स को करना जरूरी है, क्योंकि कैसे डिविजन होगा वो बाद में आपके जाने के बाद आपके बच्चे इस बात में आर्ग्यू करे, लड़ाई करे, वो ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि कोई भी भाई बहनों के बीच में ऐसी लड़ाई हो। तो बेटर आप वैसी फाइनेंशियल प्लानिंग ही कर दो कि आगे जाके इनको कभी कोई दिक्कत ना हो। और बीइंग अ वुमेन ये आपकी राइट बनती है कि अगर आपसे ये राइट आपकी ली जा रही है तो आप इसको जाके अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अब ये विमेन डज नॉट ओनली मीन्स कि हम डॉटर की बात करें, ठीक है, विमेन की भी 3 कैटेगरीज में आप अगर देखो तो वुमेन जो हो सकती है वो या तो डॉटर के फॉर्म में हो सकती है, या तो वाइफ के फॉर्म में हो सकती है, या तो मदर के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो इन तीनों में ही अगर हम देखा जाए तो तीनों फॉर्म में ही आप कुछ ना कुछ इनहेरिट करते ही हो। अगर आप डॉटर हो, आपकी शादी हुई हो ना हुई हो, दैट इज इममटेरियल, उसके बावजूद आपको अपने फादर मदर की प्रॉपर्टी से आप इनहेरिट करोगे, या आपकी राइट बनती है, और वो भी इक्वली जितना आपके भाई कर सकते हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस कि उसको हाफ मिलेगा तो आपको उसका आधा मिलेगा, नहीं, जितना उसको मिलेगा 50-50 डिविजन इज, और ऑब्वियसली इट हैज टू बी डन उस तरीके से। ये हो गई डॉटर। अगर आप वाइफ हो तो वाइफ में ऑब्वियसली आप इनहेरिट अपने हस्बैंड से नहीं करोगे, वो आपका मेंटेनेंस के फॉर्म में चला जाता है, तो आपको उस फॉर्म में आप उनसे प्रॉपर्टी या आप उनसे क्लेम कर सकते हो अगर आपकी प्रॉपर फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है तो। और मदर के फॉर्म में भी, मतलब अगर आप मदर हो तो मदर के फॉर्म में भी ऑब्वियसली आप अपने बच्चों से क्लेम कर सकते हो। तो आप कोई भी स्टेज में हो, बीइंग अ वुमेन, आपके पास एवरी स्टेज ऑफ लाइफ में आपके पास ये राइट रहेगा, तो आप कभी भी इसको एक्सरसाइज कर सकते हो। अब मेन प्रॉब्लम आती कहाँ पे? प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास लॉज तो है, फर्स्ट प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन, या फिर हम कितना उस पे निर्भर होते हैं। एक इंडिया में हमारा कॉन्सेप्ट चलता है कि पुलिस और कचहरी से हमें दूर रहना है ना, कि यहाँ जाएंगे तो इट्स की हमारी फैमिली का रेपुटेशन खराब होगा, नाम सेक में आएगा, तो लोग हमें जज करेंगे।
तो अगर हम ये सब चीज सोचते रहेंगे तो ऑब्वियसली हमें कहाँ जाना है, किस चीज को क्लेम करना है, वो फिर हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शंस हमारे पास ओपन है कि हम कभी भी अगर कोई भी अगर हमारी राइट इन्फ्रिंज हो रही है तो हम पुलिस के पास अप्रोच करें, या फिर हमारे पास कोर्ट के ऑप्शंस भी खुले होते हैं। अब आती है एक टर्म आ सकता है कि हम उतने वेल फाइनेंस नहीं है कि हम खर्चा पूरा कोर्ट केसेस का कर सके, तो उसके लिए हमारे पास फ्री लीगल एड सर्विसेज भी होता है कि इफ यू आर नॉट दैट मच सफिशिएंट, केस हम इंडिजेंट पर्सन के नाम से भी करते हैं। अगर आपने सुना हो कभी इंडिजेंट पर्सन क्या होता है, कि हम उतने केपेबल नहीं है कि हम उतना अमाउंट स्पेंड कर सके एक कोई कोर्ट में कोई केस में, तो केस एज एन इंडिजेंट पर्सन या फिर हम उस तरीके से फाइल करते हैं जहां पे फिर क्या होता है कि आपकी जो भी सर्विसेज होगी वो आपको मिनिमल कॉस्ट या फिर लो कॉस्ट में भी हो जाती है। तो ये आप मत सोचना, बस द टैबू इज कि हमें सोसाइटी क्या सोचेगी ये सोच के अगर हम चलेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम अपने बच्चों का कुछ भी प्लान नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज जो सोसाइटी और कोर्ट को लेके इम्प्रेशन है वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आज का सेशन का अगर हम मेन मोटो देखें तो वो ये था कि हम आपको लीगल नॉलेज आपके साथ शेयर कर सके कि लीगल इनहेरिटेंस में आपकी कैसी क्या राइट्स है। फर्दर ये हो गई हमारी जनरल राइट्स। अगर आपको लगता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये आप लोगों के थ्रू कुछ डिफिशियंसी हो रही है कि नहीं यहाँ पे कुछ चेंजेस जरूरी है, तो ये ऑब्वियसली ये जो सेशन कंडक्ट किया गया है वो इसीलिए किया गया कि आपकी तरफ से हमें कुछ इनपुट्स मिल सके कि एक्चुअली यहाँ पे लैक्यूना है, इसमें एक स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए, या तो फिर ये कुछ इन पर्टिकुलर लोगों के लिए एक पर्टिकुलर स्पेशल लॉज बनने चाहिए। तो वो आपके जैसे भी आप हमें इनपुट्स दोगे उस बेसिस में ऑब्वियसली वी विल बी टेकिंग इट अप अहेड। तो अगर आपका ऐसा कोई भी लैक्यूना या कोई भी लॉज या क्लॉजेस है तो आप प्लीज अभी हमें आप बताओ, अगर हुआ तो वी विल बी देयर टू सॉल्व ऑब्वियसली। एंड नेक्स्ट सना फिर आपका कंटिन्यू करेगी सेशन। थैंक यू। I think Hello. Sana, you can continue the session. Questions हम एक साथ एंड में लेंगे, ठीक है? ओके। अब जितना कि आपको निराली ने बताया तो मुझे आपको ये बताना था कि आप सभी ने सुना होगा कि जो भी लड़कियां हैं आज को या जो भी वुमेन्स है वो हर एक फील्ड में सबसे ज्यादा है और हर एक फील्ड में बहुत आगे है। तो मेरा मानना ये है कि जब वो लोग इतने आगे निकल सकते हैं या हर चीज को अप्रोच कर सकते हैं तो फिर आप लोग क्यों नहीं। उसमें आप सभी ने सुना होगा कि हमारे पास एक केस आया था अभी रिसेंट, एक जजमेंट था जो कि था ट्रिपल तलाक का। तो ट्रिपल तलाक के जजमेंट में एक नॉर्मल वुमेन थी जिन्होंने की केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट जैसे मतलब कोर्ट में उन्होंने अपील की थी, जहाँ पे कि उनको ये लगा कि उनके कुछ राइट्स हैं ट्रिपल तलाक, जो कि इजीली मतलब आप अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकते हैं, ठीक है। मतलब उनका हस्बैंड इजीली उनको डाइवोर्स देगा ट्रिपल तलाक मतलब 3 टाइम्स तलाक 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 बोलने के बाद। तो आप भी सोचिए कि एज अ मतलब हिंदू वुमेन या मुस्लिम वुमेन जो तलाक का कॉन्सेप्ट है, जो डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इजीली कोई भी किसी को डाइवोर्स तो नहीं दे सकता, ना ही कोई किसी से तलाक ले सकता है। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए, उन्होंने अपील करी, PIL फाइल करी, जिसके बाद की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये जजमेंट दिया कि ठीक है ये जो ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट है ये इलीगल है। तो उन्होंने वो चीज हटवाई, वो भी एक वुमेन थी। तो मेरा मानना ये है कि जब वुमेन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकते हैं तो फिर आप लोग अपनी प्रॉपर्टी राइट्स के लिए तो लड़ ही सकते हैं। जब आप लोग अपने प्रॉपर्टी राइट्स के लिए लड़ेंगे तो जो आने वाली जो जनरेशन है उस पर भी ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो भी इजीली अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप जैसे खुद को अप्रोच करेंगे वैसे वो आगे जनरेशन में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके थोड़े भी काम आया है या आपको थोड़ा भी समझ आया है तो इससे आप सिंपली सी चीज ये है कि आप अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ चीजें ऐसी सोच के रखिए जिसमें कि आपको इन फ्यूचर हेल्प प्रोवाइड हो। अब बात करते हैं कि इफ इन केस आपको कोई भी राइट या कोई भी लॉज या कहीं पे भी अप्रोच करना हो किसी भी चीज के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन स्टेप आपका ये होगा, हम सभी सोचते हैं कि इफ इन केस अगर हमें कहीं पे अगर अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जो राइट्स मिले हैं उनको आपको लेना कैसे, अडॉप्ट कैसे करना है। तो आपको उनके लिए कुछ नहीं करना है, पहले अपनी फैमिली से बोलना है कि जो राइट्स हमें मिले हुए हैं प्रॉपर्टीज में आप हमें वो दीजिए। अगर आपकी फैमिली आपको सॉफ्टली वो राइट्स दे देती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनती।
तो आपके नाम पे डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। बट इफ इन केस वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, या हम वो राइट्स नहीं दे सकते, या कुछ भी इस टाइप से अगर वो आपको डिनाई करते हैं आपकी प्रॉपर्टीज में राइट्स देने से, या आपको मना करते हैं, तो आपके पास सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जाके पुलिस स्टेशन में या नियर बाय कोई भी कोर्ट या कोई भी सीनियर ऑफिसेज है, वहां पे आप जाके अप्रोच कर सकते हो, उनको ये चीज बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे हमारे ये प्रॉपर्टीज कुछ राइट्स हैं, ये हमें हमें मिलने चाहिए थे, बट हमारे पेरेंट्स जो है वो उनको देने से हमें डिनाई कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो भी हैं वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे। वो आपको अगर ये बोलते हैं कि मैम आपका जो केस है ये हमने सुन लिया, ये हमने रजिस्टर्ड कर लिया, आप इसके आगे आप कोर्ट जाइए। अगर आप कोर्ट जाएंगे तभी आपको इसका डिसीजन मिलेगा, तभी आपको आपके राइट्स मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कोर्ट जाना है। कोर्ट में आपको डायरेक्टली ये बोलना है कि हम एक बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं, हम अपना लॉयर या एडवोकेट हायर नहीं कर सकते हैं, तो आप प्लीज हमें यहाँ पे फ्री लीगल एड की सर्विसेज प्रोवाइड करें। फ्री लीगल एड की सर्विसेज मतलब आपको वहाँ पे कोई भी नॉर्मल लॉयर कोई भी एडवोकेट दिख जाता है तो आप डायरेक्टली उनको ये चीज पूछ सकते हैं कि सर हमें कहाँ से फ्री लीगल एड सर्विसेज का बेनिफिट मिलेगा। वो आपको डायरेक्टली बता देंगे कि मैम आप इस ऑफिस में जाइए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपको जो वो एडवोकेट प्रोवाइड होंगे, जो आपके फ्री लीगल एड प्रोवाइड होंगे, उनको आप अपना पूरा केस बता सकते हैं। वो केस बताने के बाद वो आपके बिहाफ पे वो केस लड़ेंगे, जिससे कि आपको एट लास्ट आपकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। पहले तो आप यही अप्रोच करिए कि अपनी फैमिलीज में जितने नॉर्मल तरीके से ये चीजें हो सकती हैं, जितने नॉर्मल तरीके से वो आपके राइट्स आपको दे सकते हैं, वो वेल एंड गुड है। इफ इन केस ऐसा कुछ अराइज होता है तो उसके लिए आपके पास कोर्ट कानून सभी कुछ है, पर प्रॉब्लम ये है कि आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडियन लॉज में जानते हैं कि कानून इतना इजिली किसी के मैटर में इंटरफेयर करने के बाद भी वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। आप सबको और हमें भी ये चीज पता है कि इफ इन केस कोई भी मैटर होता है, कोई भी लॉज या कोई भी एफआईआर होती है, तो उसमें पुलिस इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है, बिकॉज हर कोई कोशिश ये करता है कि अपने काम से थोड़ा सा मतलब फ्री रहें या कुछ भी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको बोलेंगे और आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये बनती है कि फर्स्ट आप स्टेप लेंगे, देन वो आपके लिए कुछ स्टेप ले सकते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज को फॉलो करें। और जो भी वुमेन्स हैं या जो भी कुछ है, इन सब चीजों के बाद आपका ये मुझे बताना था कि ये तो हमारे इनहेरिटेंस राइट्स हो गए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वुमेन्स को लेके जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता, या फिर जो भी और राइट्स हैं जो कि आपको बताने थे मुझे, तो वो उसमें मुझे ये बताना था कि कुछ वुमेन्स राइट्स हैं जिसमें कि आपको इनहेरिटेंस के बाद भी आईपीसी को ले लो, आप इंडियन कानून के कोई भी कुछ भी एक्ट उठा लो, सब जगह पे आपका वुमेन्स के प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो आप ये बताइए, जब आपको हर जगह प्रोटेक्शन मिली हुई है तो आपको तो डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी फील्ड में कहीं पे भी कोई भी कानून उठा के स्टेप ले सकते हैं। और एक चीज मुझे आपको और बतानी थी कि जो हमारे पास जो डाइवर्स का कॉन्सेप्ट है, अगर आपका तलाक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अभी जो इस सेशन में जुड़ी हुई हैं वो पेरेंट्स हैं और वो सीनियर पर्सन हैं, तो मेरा उनको मानना सिंपल सा ये है कि जो हमारे पास डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है उसके लिए आप अपने मतलब जो इनहेरिटेंस में हमने क्लेम करी वो फादर्स की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो जो डाइवोर्स के कॉन्सेप्ट में अगर हमें अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टीज चाहिए तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, सेक्शन 125 ऑफ CRPC। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मेंटेनेंस मतलब ये कि आपका हस्बैंड अगर आपको डाइवोर्स देता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जब तक भी आप हैं वो आपका मेंटेनेंस आपको पे करे। और इफ इन केस आपका कोई बेबी है या गर्ल चाइल्ड है बॉय चाइल्ड है तो वो उसका भी मेंटेनेंस पे करेंगे टिल जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। तो आपको यहाँ पे भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि आपका हस्बैंड भी आपको मेंटेनेंस देगा। आपके फादर्स की प्रॉपर्टीज आपके नाम पर होगी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट आपका हस्बैंड से भी आपको आपकी प्रॉपर्टीज राइट्स मिलते हैं। अगर आप इस चीज को अप्रोच करेंगे तो आपको डाइवोर्स के बाद भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। केसेस लंबे चलते हैं, जब भी कुछ भी होता है तो इसमें क्या होता है कि आपको जिस दिन से भी केसेस स्टार्ट होते हैं उससे लेकर टिल एंड तक भी आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड होता है। तो इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, एक आपका आ जाता है इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, दूसरा आपका आ जाता है डाइवोर्स, तीसरा आपका आ जाता है सेक्शन 125 ऑफ CRPC मेंटेनेंस, ठीक है। आपकी मैंने 3 या 4 सी चीजें कवर करी है और मेरे को चौथी चीज ये भी बतानी थी कि ये वुमेन सेक्शन है, तो इसमें मुझे ये समझाना था आपको कि जो भी आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आप सभी ने ये वर्ड सुना होगा डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें क्या होता है कि जितनी भी महिलाएं हैं जो भी घर में रहती है
मम्मी हो गई, सिस्टर्स हो गई और वाइफ हो गई या फिर विडोज हो गई, इनके साथ क्या होता है कि घरों में बहुत तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस है, किसी भी चीज को आप लोग फेस करते हैं, तो प्लीज आपके पास राइट्स हैं, आप उन पे स्टैंड लीजिए। और जो भी ऐसे काम करते हैं उनके लिए पनिशमेंट्स है, आईपीसी में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पनिशमेंट्स हैं। तो प्लीज आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मेरा मानना है कि आप उन चीजों को फेस ना करें, उनको आगे बढ़ाएं, जिससे कि और जो महिलाएं हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिले आपके जरिए। तो आपका काम है कि अगर आपको कोई भी तरीके का कोई भी टॉर्चर करता है, आपको फिजिकली फोर्स करता है, सेक्सुअल फोर्स करता है, आपको मतलब पैसों से कोई दिक्कत करता है, या आपके बच्चों को पढ़ाई में या किसी भी चीज के लिए वो आपको डिनाई करता है, तो आपका हस्बैंड हो, भाई हो, फादर हो, कोई भी मेल पर्सन जो कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू किसी भी तरीके का हार्म करता है, तो एज अ वुमेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू फाइल कंप्लेन अगेंस्ट हिम। तो आई थिंक आपको मैंने 4 से 5 एक्ट्स कवर की हैं, जिसमें कि आपको मैंने ये भी बताया है कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, मैंने आपको ये भी बताया है कि आपका मेंटेनेंस क्या है, मैंने आपको ये भी बताया है कि आपकी डोमेस्टिक वायलेंस राइट्स क्या है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि वुमेन्स के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो कि मतलब 90% जो लॉज हैं वो ऑलमोस्ट वुमेन्स फेवर में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि बात करते हैं वुमेन्स प्रोटेक्शन की। तो जब सब लोग मिलके इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि एक कदम आपकी साइड से भी होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो भी हमने अपने साइड से जो भी स्टेप्स लिए हैं उनमें हमें ये लगे कि हाँ हमारा काम खराब नहीं हुआ, हमने जो भी स्टेप लिए हैं वो वैलिड थे और वो आप लोगों की हेल्प के लिए थे। तो उससे हमें भी काफी सारी मोटिवेशंस मिलेंगी, जिससे कि हम ट्राई करेंगे कि आगे हम और भी इन चीजों को इम्प्रूव कर पाए और जितना कोशिश हो आपकी हेल्प कर सके। और इफ इन केस आपको इस सेशन के बाद अगर कोई भी डाउट आता है या कुछ भी क्वेरीज आती हैं, तो आप लोगों के पास, आप लोग बिल्कुल फ्री हैं। ये सेशंस इसलिए रखे गए हैं जिससे कि हमें आपको ये पता चले कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स आप लोग क्या फेस करते हैं। अगर आपकी वो जो प्रॉब्लम्स हम तक आएंगी, तो अगर उसमें से हमें लगता है कि हाँ आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है सीरियस है या सच में वैलिड है, तो हम चाहेंगे कि वो चीज आपको आगे मिले, चाहे वो प्रॉपर्टीज राइट्स हो, चाहे वो डोमेस्टिक राइट्स हो, कोई भी राइट्स हो। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को जब हम जान लेंगे तो उसके बाद हम उसको उस पे आपको सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, और इसमें आपको जो भी राइट्स या जो भी क्वेरीज हो, प्लीज यू आर फ्री टू आस्क एनीवन। Thank you, Miss Nirali. Very wonderful. उन्होंने बहुत अच्छे से लीगल इनहेरिटेंस राइट्स के बताया हमारे पार्टिसिपेंट्स को. Now I would request Durga ma'am and Manjula ma'am, if any participant is ready to ask, Miss Sana and Miss Nirali are there, so wo questions they can answer. And the questions for Mr. Jitendra Solanki sir, that can be emailed or WhatsApp to him. So accordingly, please ask your participants to ask the questions. Other Japan. Thank you so much. We have asked them, we have passed some papers to them. They're writing their questions because many questions come, and even after we talk to them a little more about in Telugu, how important it is, then they will write and we will send them to you and we will pass the answers to them. We are giving them the questionnaire, and after Yes. they answer, we will scan Yeah. and send them. Sure. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, Miss, whatever questions, as Durga ma'am mentioned, whatever questions, after going through the questionnaire and after listening to the session, they will the Swayam Krushi organize a short discussion after our program. So whatever questions come across for you and Nirali and for Jitendra sir, we'll be automatically WhatsApping them, emailing them to all of you, so that the appropriate answers can then be again come you and sent to the participants. I hope it's experts also. Yes, Sana and Nirali? Okay, ma'am. Fine, sure. Thank you Thank so you, ma'am. much. Thank you. So I think Anusya, because the questions will come later, and our first expert of the session, that is
Jitendra P.S. Solanki sir, who took the session on financial planning, and the second session on orientation on legal inheritance rights by Ms. Sana and Ms. Nirali. And as Durga ma'am said, They will come in later on and then we can answer. yeah, the we can questions, right? So then I think Sampurnama, we can conclude today's session. yeah, quickly just give a brief conclusion and then a vote. Kind of go ahead. Madam ma'am, would you like to say anything? Hello. Yes, Manjula ma'am. It was a wonderful enlightening program, and we learned so much, and now so many questions are arising. Even in our staff also are asking, and we are very lucky to have this opportunity. And I must thank Dr. Pujari and all of you, the whole team. I hope Thank we you. will have more such sessions. Be very happy to participate. And nice to see the youngsters and coming with the information. Congratulations to them. Thank you. ma'am. Thank you. Thank you, Durga ma'am. Angela ma'am. Thank you so much for the Looking forward for words. more These words. this type of program. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. It's mean a lot for us as a research team also, as a team from AIRS also. And when we are, work, as you mentioned, with this young law experts, Ms. Nirali, Ms. our seasoned expert, Mr. Jitendra Solanki. Thank you, ma'am. Appreciation. Dear participants, come to an end of this session on and training workshop on legal inheritance rights of differently abled women. In the first session on financial planning, taken by Shri Jitendra Solanki sir, for families of differently abled women, sir elaborated and highlighted the various building blocks of any financial planning, which should consist of planning for future risks and future costs which may arise, and also take into consideration the present costs along with a letter of intent. So all participants, please make sure that you form a letter of intent for your own wards and children and adults with disabilities. And also in the following session, that is orientation session on legal inheritance rights of differently abled women by Ms. Nirali Jain and Ms. Sana Siddiqui, who are legal experts and master of law, especially in the family law. They elaborated on three main laws, that is property rights, the maintenance rights, and the rights for differently abled women. So we are very sure that all the participants have noted down the points, and as Durga ma'am and Manjula ma'am mentioned, we are very happy to also note that this session is proved to be very useful. We are looking forward to a list of recommendations and questions from our lovely participants who have taken out time to be with us on this forum. And we are very happy that this session has proven useful to all the participants, to all the parents, caregivers of women with disabilities, and of course, the women with disabilities who themselves have joined this session for all of us. I now take the privilege to put on record Ma'am, you are not audible. Ma'am, you are not audible. Not audible. No, ma'am. So please check, am I audible now? Okay, Yes. thank you.
I now take the privilege to thank all the experts who have joined us for this wonderful session. Mr. Jitendra P.S. Solanki sir, who took the session financial planner, Ms. Sana and Ms. Nirali in legal law, especially family law, who joined us for the session. Biggest thanks to Swam Krushi for who came over and accepted our proposal to be part of this training workshop. A lovely thanks to all the participants, parents of women with disabilities and women with disabilities themselves who took out time to be a part of this training session. I also thank the research team from Amity Institute of Rehabilitation Sciences, and I also extend my thanks to the National Commission for Women who have cooperated with AIRS for this important research study. Once again, a big thanks to all the experts and all the participants for joining in. My heartfelt gratitude to Durga ma'am and Manjula ma'am for coordinating this whole workshop along with me and helping us and supporting us in making this work. Thank you once again to all the participants and have a very good day.